الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، آئیے ہم آپ سے مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کرم منبع علم والفکر وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ تیری جاگیر میں ہے شرق تا غرب، تیری جاگیر میں ہے شرق تا غرب، قلمرو میں حرم تاحیل ہے یا غوث، قلمرو میں حرم تاحیل ہے یا غوث۔ اشارہ میں کیا جس نے قمر چاک، اشارہ میں کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث۔ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واعظ کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واعظ کی محفل ہے یا غوث۔ جسے مانگے نہ پائیں جا حوالے، جسے مانگے نہ پائیں جا حوالے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ جو قرنوں سیر میں عارف نہ پائیں، جو قرنوں زمانے تک مدتوں، جو قرنوں سیر میں عارف نہ پائیں، وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث۔ بخارا وہ عراق و چشت و اجمیر، بخارا وہ عراق و چشت و اجمیر، تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث، تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث،
تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث، عجب کیسا عرب ہل کیا حرم میں، عرب کیسا عرب ہل کیا حرم میں، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث، جمی ہر جا تیری محفل ہے یا غوث، سخن ہے اصفیا تو مغز معنی، سخن ہے اصفیا تو مغز معنی، بدن ہے اولیاء تو دل ہے یا غوث، بدن ہے اولیاء تو دل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، ولیوں میں اونچا مرتبہ صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، اسی جانب ہے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بساگے قادری منزل ہے یا غوث، بساگے قادری منزل ہے یا غوث، یہ چشتی سہروردی نقش بندی، یہ چشتی سہروردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کہ طلبہ تاج اہل دل ہے یا غوث، کہ طلبہ تاج اہل دل ہے یا غوث، عزوماً قاتلاً عند القتال، شعر کا ایک جملہ ہے حضور غوث اعظم کا جو قصیدہ ہے قصید غوثیہ، اس کا ایک جملہ ہے، عزوماً قاتلاً عند القتال، مدد کو آ دمِ بسمل ہے یا غوث، مدد کو آ دمِ بسمل ہے یا غوث، جلاد دین، جلاد دین، جلاد کفر و الحاد، جلاد دین، جلاد کفر و الحاد، کہ تو محیی ہے تو قاتل ہے یا غوث، خدارا مرہم خاک قدم دے، خدارا مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، انہی سچوں میں شمار حضور سیدی سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ مسلسل شاید 2 یا 3 جمعہ سے اس سے پہلے انہی کے حیات طیبہ کے حوالے سے اور انہی کے ذکر خیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی چونکہ ربیع الاخر کا مہینہ اختتام پذیر نہیں ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے آج پھر انہی کی بارگاہ میں ہم سب انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس امید پر کہ چونکہ اولیاء کا ذکر بھی ایک طرح سے ذکر خدا ہے، اولیاء کا ذکر بھی ایک طرح سے ذکر خدا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی شاید میں نے کسی موقع پر قرآن شریف کی تفسیر کے بیان میں نے بتلایا تھا کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ حقیقت میں مصنوع کی تعریف، بنی ہوئی چیز کی تعریف کرنا، اصل میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، یہ بالکل اظہر من الشمس ہے، دن کے اجالے کی طرح سب پر یہ بات روشن ہے کہ جو چیز بنی ہوئی ہے اگر اس کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں یہ تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر ہم مائک کی تعریف کریں تو ظاہر سی بات ہے بنانے والا خوش ہوگا، اصل میں اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ پوری کائنات میں جو صاحبان مرتبہ ہیں، جنہیں اللہ نے عظمت عطا فرمائی، رتبہ بلند اللہ رب العزت نے جنہیں عطا فرمایا، اگر ان کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں اس پروردگار عالم کی تعریف ہے، اس لیے کہ ان حضرات کو
ऐसा बनाने वाला वही परवरदिगार आलम, इन्हें तसर्रुफ अता फरमाने वाला वही रब्बुल आलमीन है, इन्हें इख्तियार अता फरमाने वाला वही ज़ुल जलाल वल इकराम है। उसी ने अपने करम से इन हजरात को ये मर्तबे बुलंद अता फरमाया। और इनमें कुछ हजरात वो हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी तगौदौ से, अपनी कोशिश से उस मंजिल को पा लेते हैं जिसे विलायत की मंजिल कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो फरमान हमें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए, जो बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है। इमाम बुखारी ने इसको रवायत फरमाया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का इरशाद है, हदीस कुदसी है, अल्लाह का इरशाद है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, कोशिश करता है। नवाफिल जाहिर सी बात है, ये नवाफिल कोई फर्ज तो है नहीं, कोई वाजिब तो है नहीं। रात में इंसान शब बेदारी करता है। एक बंदे मोमिन अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को हमेशा तर रखता है, अपने दिल को याद इलाही की जानिब हमेशा मायल रखता है और अपने वजूद को तमाम दुनिया से मतरूक करके, तमाम दुनिया से किनारा कश हो करके अपने वजूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जानिब लगा देता है, अल्लाह की याद की जानिब लगा देता है। रात दिन मेहनत करता है, मशक्कत करता है, नवाफिल की कसरत करता है। तो ऐसे मौके पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का इरशाद है कि मेरा बंदा जब नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे महबूबियत की मंजिल पर फाइज फरमा देता हूँ, यानी वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। और जब वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है, जब वो मेरी मोहब्बत में जल करके कुंदन बन जाता है, महबूबियत का शरफ जब मैं उसे अता फरमा देता हूँ तो मैं उसे वो मकाम आला अता फरमाता हूँ कि मैं उसकी आंखों से देखता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक और हदीस मुबारका में इन हजरात की महबूबियत के हवाले से हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है जो मिशकात शरीफ के अंदर रवायत बयान की गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इरशाद है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, रियासत और मुजाहदा करते हैं, इबादत और जिक्र और फिक्र के अंदर मसरूफ रहते हैं, तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर मैं जनाब जिब्रील अमीन को हुक्म देता हूँ कि ऐ जिब्रील, मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। उधर हजरत जिब्रील आसमानी दुनिया पर ऐलान फरमाते हैं, ऐ आसमानी फरिश्तों सुनो, अल्लाह अपने फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं जिब्रील उससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग भी उस बंदे से मोहब्बत करो। आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद फिर जमीन के अंदर ऐलान किया जाता है, ऐ जमीनी मखलूकात, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, तमाम फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। तो जमीन के अंदर उसके लिए मकबूलियत लिख दी जाती है। वो जहां चाहता है वहां सैर करता हुआ नजर आता है। जिस जानवर को हुक्म देता है जानवर फरमाबरदारी करता हुआ नजर आता है। अगर दरिया को कहता है दरिया रुक जाता है, समंदर को कहता है तो समंदर सिमट जाया करता है। अल्लाह ताला उसकी ज़बान में तासीर अता फरमा देता है। यह मकाम है औलिया इकराम का। और कोशिशों के जरिए से, अपनी तगौदों के जरिए से, रियासत और मुजाहदात के जरिए से अल्लाह ताला अपने बंदों को वो मकाम औलिया अता फरमा देता है, वो मकाम बुलंद अता फरमा देता है। तो औलिया इकराम में कुछ तो वो हैं कि अल्लाह अपने करम से उनकी इबादतों को की वजह से अल्लाह अपना करम फरमाता है और उन्हें उस मंजिल पर फाइज फरमा देता है। मगर उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इन औलिया इकराम में कुछ हजरात ऐसे भी होते हैं जो किसी साहिबे दिल की बारगाह में हाजिरी देते हैं और साहिबे दिल आंखों से आंखें मिलाता है
اور انہیں विलायत के मंजिल पर फाइज कर देता है। आंखों से आंखें मिलती हैं और उसके बाद वली बना दिया जाता है। वो उस मकाम तकर्रुब पर पहुंच जाता है, मकाम कुर्ब से हासिल हो जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी विलायत को विलायत अताई के नाम से याद किया जाता है। और एक वो लोग हैं जिसका जिक्र मैंने पहले बयान किया, उनको उनकी विलायत को विलायत कसबी के नाम से याद किया जाता है। हालांकि कसबी भी दर हकीकत वह भी ही होती है, अल्लाह की अता ही होती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अल्लाह जब चाहता है अपने बंदों को मकाम बुलंद अता फरमाता है, अपने खास बंदे को मकाम बुलंद अता फरमाता है। मशहूर वाक़या हजरत बहरुल्दाना का, हारून रशीद ने पूछा था ना, बार बार उन्हें तलाश करवाता था, लाओ उनको हमारे दरबार में हाजिर करो ताकि मैं उनसे फैज़ हासिल करूं। तलाश करते थे उनके उसके कारिंदे, बादशाह के कारिंदे, मगर वो तो एक हाल और मस्ती में दीवाने हैं। दीवानी शख्सियत का नाम हजरत बहरुल्लाह, कहाँ दुनिया के तलाश करने में पर वो मिला करते हैं। बस एक दिन अचानक उसी मस्त अलग हालत में हारून रशीद के महल के नीचे से गुजर रहे थे। किसी ने जाकर के इत्तला दिया, हुजूर वो बहरुल्लाह जिन्हें आप तलाश कर रहे थे वो तो महल के नीचे जो सड़क जा रही उसके उस पर से गुजर रहे हैं। हारून रशीद ने कहा कि इसी ऊपर से कमंद डालो उनके ऊपर और यहाँ हमारे दरबार में लाकर के हाजिर कर दो। ऊपर से सिपाहियों ने कमंद डाला और जनाब बहरुल्लाह को बादशाह हारून रशीद के दरबार में लाकर पेश कर दिया और उनका आंखें चढ़ी हुई थी। बादशाह ने इंतहाई नरमी के साथ और बहुत ही ज्यादा मलाहत के साथ उनसे पूछा, हिल्म के साथ पूछा कि हुजूर मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे ये है कि आप खुदा तक भला कैसे पहुंचे। हजरत बहरुल्लाह फरमाते हैं जैसे तुम्हारे दरबार में पहुंचा ऐसे खुदा तक में पहुंच गया। फिर उन्होंने फिर सवाल किया बादशाह ने, आप मेरे दरबार में कैसे पहुंचे। बहरुल्लाह ने जवाब दे जैसे खुदा तक पहुंचा वैसे तुम्हारे दरबार में पहुंच गया। बादशाह हाथ बांध कर खड़ा हुआ, हुजूर कुछ समझ में नहीं आया, जरा इसकी वजाहत फरमा दें। तो हजरत बहरुल्लाह ने जवाब दिया था, अगर मैं तुमसे मिलना चाहता, अगर मैं तुम्हारे दरबार में आना चाहता तो पहले नहाता, गुस्ल करता, अच्छा लिबास पहनता, इत्र लगाता और उसके बाद चलकर तुम्हारे महल के दरवाजे पर आता, चौकीदार को इत्तला करता, वो दरवाजे पर टंगे हुए घंटे पर हथौड़ा मारता, मैं अपना नाम लिख करके एक पर्ची पर देता, वो चौकीदार लाकर आपको पेश करता, आपकी मर्जी नाम देखने के बाद मुझे बुलाते या ना बुलाते या आपकी मर्जी पर थी या आपके चाहने पर था। आप अगर चाहते तो मुझे बुलाते और नहीं चाहते तो वहीं से वापस कर देते। बस यही हाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक पहुंचने का है। बंदा कोशिश करता है, मुजाहदा करता है, इबादत और रियासत के अंदर मसरूफ रहता है, गोशा नशीनी इख्तियार करता, सारी जिंदगी गुजर जाती है मगर वो मंजिल उसे नहीं मिलती। मगर जब अल्लाह चाहता है अपने रहमत की कमंद डालता है और अपनी बारगाह में बारियात कर लेता है। किसी बहुत ज्यादा इबादत और रियासत और गोशा नशीनी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जब अल्लाह चाहता है अपनी मर्जी से उसको जिसको चाहता है उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है, अपनी नजदीकी अता फरमा देता है और वो मकाम बुलंद अता फरमा देता है जिसके लिए बंदा हजारों कोशिशें करता है और मुजाहिदे की मंजिलें तय करता हुआ नजर आता है। तसव्वुफ और सुलूक के रास्ते पर मशक्कतें उठाता हुआ नजर आता है, नफ्स कुशी करता है, अपने नफ्स से बाज़ाब्ता जिहाद करता हुआ नजर आता है। जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल होती है तब उसके बाद उसे वो मंजिल अता की जाती है। तो ये विलायत जो कसबी है बंदा कोशिशों के जरिए से हासिल करता है, हकीकत में ये भी वह भी है। अल्लाह जब चाहता है अपने बंदे को मकाम बुलंद अता फरमाता है। और एक वो विलायत कि कोई बंदा कुछ भी हो बस एक वली के दरबार में हाजिर हो जाए और वो साहिबे दिल आने वाले के आंखों में आंखें डाल दे, उसके दिल पर अपनी निगाहें रहमत डाल दे तो वो दमे ज़दन में वली बना दिया जाता है। हजरत बिशर हाफी अपने ज़माने के कैसे इंसान है मगर हजरत खिज़र की एक नज़र पड़ती है और दमे ज़दन में औलिया के सरदार बना दिए जाते हैं, अपने ज़माने के हाफी बना दिए जाते हैं। और वो चोर जो चोरी करने आया था गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में, वो चोर था, अपने ज़माने का नाकारा इंसान था मगर गौसियत में आपकी एक नज़र पड़ती है और दमे ज़दन में अब्दाल बना दिया जाता है, अब्दाल की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। ये विलायत वहबी कहलाती है, यानी विलायत अताई कहलाती है। या अपना अल्लाह अपने बंदे के जरिए से किसी को अपना कुर्ब अता फरमाता है, अपने
قرب یافتہ کے ذریعے سے اپنا تقرب کی منزل پر فائز فرما دیتا ہے، اپنے کسی ولی کے ذریعے سے کسی کو ولی بنا دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ، اس کے بعد حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر جن ڈاکوؤں نے توبہ کیا تھا ان لوگوں کا واقعہ، اور پھر اگر آپ قرآن میں اس کی دلیل تلاش کریں، اگر قرآن مقدس کے ذریعے سے آپ اس پر ثبوت مانگنا چاہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیں۔ ان کو بھی دربار فرعون میں بلوایا گیا تھا، تمام جادوگروں کو بھی بلوایا گیا، اور کئی مقامات پر قرآن مقدس میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے پارے سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر آل عمران میں، اور اس کے بعد سورہ انبیاء میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے اس واقعے کو۔ دربار فرعون میں تمام جادوگر حاضر ہیں، اس کے بلائے ہوئے، انعام کی لالچ میں وہ سب کے سب حاضر ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو بلایا جاتا ہے۔ تمام جادوگروں نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہم اپنا کام دکھائیں یا آپ اپنا کام پہلے دکھائیں گے، یہ ادب کا معاملہ تھا۔ جانتے ہو علم سے وہ منزل نہیں ملتی ہے، ادب سے وہ منزل ملتی ہے، اور احترام سے وہ منزل ملا کرتی ہے۔ جہاں پر ادب ہوتا ہے اللہ رب العزت وہ ان ادب والوں کو اپنے قرب کی منزل عطا فرماتا ہے۔ صرف علم رہنے سے کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کا قریبی بن جائے گا، صرف علم کی دولت ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی نزدیکی عطا فرما دے گا، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر ادب ہے اور کسی صاحب دل کے نظر پڑ جائے تو وہ ادب والا با نصیب بنا دیا جاتا ہے، اسی لیے ادب با نصیب کہا گیا ہے اور بے ادب بے نصیب کہا گیا ہے۔ وہاں پر ایسے ہی ہوا تھا، ان لوگوں کا یہ ادب تھا، جادوگروں کا یہ ادب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان لوگوں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہم اپنا کام دکھائیں یا آپ اپنا کام دکھائیں گے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پہلے تم ہی اپنا کام دکھاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی رسیاں، اپنے ڈنڈے وغیرہ جو بھی ان کے پاس تھے ان لوگوں نے میدان میں چھوڑا اور جادو چلایا، تو وہ رسیاں لوگوں کی نظر میں سانپ بن کر لہرانے لگے، یہاں تک کہ میدان بھرا بھرا نظر آنے لگا سانپوں سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا، یا موسیٰ الق عصاک ولا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، اپنی لاٹھی زمین پر رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو ایک بھاری بھرکم اژدہا بن جاتا ہے، وہ لاٹھی اژدہا کی شکل میں لہرانے لگا پورے میدان کے اندر، اور جتنے جادو کے سانپ تھے ان تمام سانپوں کو نگل گیا، جبڑا بڑھا کر فرعون کے محل کی طرف جیسے جانے کا ارادہ ہوا، حضرت موسیٰ نے اس کے دم پر ہاتھ رکھا، پھر وہی لاٹھی نظر آنے لگی، پھر وہی عصا نظر آنے لگا۔ یہ جب منظر دیکھا جادوگروں نے تو جانتے ہو ان لوگوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، آمنا بموسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ ان تمام جادوگروں نے عرض کیا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد سب کے سب سجدے میں گر پڑے، سجدے شکر ادا کرنے لگے۔ ابھی سجدے سے ان لوگوں نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا، حضرت موسیٰ کی ایک نظر پڑتی ہے اپنے زمانے کے ولی بنا دیے جاتے ہیں، اپنے زمانے کے ولی بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے، تو قرآن مقدس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اللہ کا قرب یافتہ بندہ، اللہ رب العزت کا کوئی مقرب بندہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر نزدیکی حاصل جسے ہے، اگر وہ بندہ کسی عام بندے پر ایک نگاہ التفات ڈال دے، ایک نگاہ توجہ ڈال دے، ایک نگاہ شفقت ڈال دے، اللہ رب العزت اسے بھی مقام بلند عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نگاہیں ہیں، یہی وہ آنکھیں ہیں جس کے حوالے سے وہ حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ اولیاء کرام باطنی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پوشیدہ اشیاء کا بھی نظارہ کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے کان 1 کلومیٹر دوری یا یہاں تک جو بیٹھے ہیں یہیں تک کی آواز سن سکتے ہیں، مگر ان کے کان سینکڑوں میل دوری کی آواز بھی سن لیا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا واقعہ ہے نا، حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ جیلان کے رہنے والے، گیلان جسے فارسی میں کہا، یہ جیلان کے رہنے والے ہیں، اور دور دراز مقام سمرقند کے جنگلوں میں ایک قافلے پر ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا تھا۔
डाकुओं का जो काफिले का सरदार था, उसने वहीं से हजरत अब्दुल्लाह सोमई को मदद के लिए बुलाया था। वहीं से समरकंद के जंगल से उसने हजरत अब्दुल्लाह सोमई को मदद के बुलाया था। अचानक हजरत अब्दुल्लाह सोमई घोड़े पर सवार होकर के हाजिर हो गए और एक बुलंद आवाज से आपने फरमाया, रब्बुना अल्लाह सुब्बुहुल कुद्दूस तफर्रती अन्ना या खैर, मेरा अल्लाह जो बहुत ज्यादा पाकीज़ा है, हमारा रब है, ऐ सवारो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जैसे ये जुमला फरमाना था, जितने सवार थे सब के सब भाग जाते हैं और अचानक हजरत अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह तआला अलैह नजरों से गायब हो गए। कुछ दिनों के बाद वो लोग आए, काफिले वाले आए जीलान हजरत अब्दुल्लाह सोमई की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। तो उन्होंने अपना पूरा वाकया बयान किया, ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमने आपका नाम लिया, तो ये वाकया वहां पर रोनुमा हुआ। जब वो वहां के रहने वालों ने ये वाकया जब सुना तो उन लोगों ने कहा, वल्लाहि बाबा शेख, कसम खुदा की हमारे शेख तो एक लम्हे के लिए भी जीलान से बाहर नहीं गए, हमेशा यहीं रहे। मगर आप देखें एक अल्लाह का वली वहां यहाँ रहता है और सुनता दूर की है, बहुत दूर से जो आवाज पुकारी जाती है उसके नाम की बिलाशुबहा वो दुहाई के लिए पहुंचता नजर आता है, फरियाद रसी करता हुआ नजर आता है। हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाकया तलबा बयान फरमाया। आपको अच्छी तरह मालूम है 18 साल की उम्र में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद पहुंचे। मदरसा निज़ामिया में उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू किए और जब अपना पूरे कमाल पर पहुंच गए, इल्म का वफूर जब सीने के अंदर मौजें मारने लगा, वफूर इल्म का शोहरा जब हुआ पूरे बगदाद के अंदर, तो हाल ये हुआ कि कुछ उलमा कुछ मौलवी हसद भी करने लगे। ये हसद जो है इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हसद के हवाले से इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। ये हाल है। हुजूर अलैहि सलाम के फरमान का हुक्म है। तो उस ज़माने के उलमा जो बड़े बड़े उलमा थे, उनके दिल के अंदर हसद पैदा हुआ। ये अजम का रहने वाला, अरब नहीं है, हाँ, ये अजम का रहने वाला और बगदाद हम अरबों के दरमियान आया और इसकी तूती बोलने लगी है, इसका शोहरा हो गया है। चलो देखें तो कितने पानी में है, कितना इल्म है इसके पास। चुनांचे हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, अबुल अब्बास अहमद इब्ने अहमद बगदादी, ये दो उलमा बड़े दक्काक उलमा, तफसीर, इल्मे हदीस, इल्मे फिक़्ह और तमाम उलूम में इन्हें महारत ताम्मा हासिल है। ये दोनों इम्तिहान की गरज से हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाज की महफिल में आए और आने के बाद आमने सामने बैठ गए कि आप देखो ये क्या बयान करते हैं, इनका बयान आज हम सुनेंगे। और फिर हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुर्सी पर जलवा अफरोज होते हैं, एक आयत करीमा की तिलावत फरमाते हैं, खुतबे के बाद एक आयत की तिलावत फरमाते हैं और उसकी एक तफसीर बयान फरमाते हैं। इन दोनों उलमा ने आपस में एक दूसरे को देखा, इस तरह से सर हिलाए, हाँ ये सही है। उसके बाद दूसरी तफसीर बयान फरमाई, फिर आपस में देख करके सर हिलाया। उसके बाद तीसरी तफसीर, 11 तफसीर तक ये लोग आपस में देख कर सर हिलाते रहे और फिर जब 12वीं तफसीर बयान फरमाई तो ये हक्का पक्का रह गए, ये कौन सी तफसीर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इस तरह से हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक आयत की 40 तफसीर बयान फरमाई और उसके बाद फिर ये दोनों हजरात इस कदर इन पर हाल तारी होता है, इस कदर वज़्द इन पर तारी होता है कि अपना गरीबान फाड़ करके गौसे आज़म के कदमों में जाकर के अपना सर रख दिया। हुजूर गौसे आज़म ने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगाया। इनके दिल का गुबार धुल चुका था। 100 उलमा एक मरतबा हाजिर हो गए, 100 उलमा अपने जहन के अंदर मुश्किल से मुश्किल सवाल लेकर के हाजिर हुए। चलो आज भरे मजमा में हम शेख अब्दुल कादिर से सवाल करेंगे और उनको जवाब नहीं आता होगा तो पूरे भरे मजमा में उनकी रुसवाई हो जाएगी। मुश्किल से मुश्किल मसला लेकर के अपने दिल के अंदर ये हुजूर गौसे आज़म के वाज में, ये वो जमाना था जिस जमाने में 60-60 हजार 70-70 हजार का मजमा होता था। ये लोग पहले आके सामने बैठे थे, मुश्किल सवाल लेकर के अपने जहन
महल के अंदर हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और आप जैसे रौनक अफरोज हुए कुर्सी पर, आपने अपना सर झुकाया और झुकाने के बाद आंखें बंद की। जैसे ही गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सर अक़दस को झुकाया, हुजूर गौसे पाक के सीने अक़दस से एक नूर निकलता है जो बिजली की तरह दौड़ करके उन तमाम 100 उलमा के सीने में जाकर के पेवस्त हो जाता है। और जैसे ही वो नूर उनके सीने के अंदर पेवस्त हुआ, सब के सब बेहाल हो गए, अपना बाल नोचने लगे, अपनी पगड़ियां उठाकर फेंक दी, अपना कुर्ता फाड़ने लगे और सब के सब गौसे पाक के कदमों में आकर गिर गए। हुजूर गौसे पाक एक एक को उठाते थे, अपने सीने से लगाते थे, उसका मसला बयान करते थे। तेरा ये मसला है, उसका ये जवाब है, तेरा ये मसला है, उसका ये जवाब है। 100 उलमा के मसाइल को बयान किया, हर एक के सवाल को भी बयान फरमाया और हर एक के सवाल का जवाब भी अता फरमा दिया। बाद में पूछा, मुफर्रज इब्न निबहान का बयान है ये, आप बहजतुल असरार शरीफ पढ़ें, ये वो किताब है जो बड़ी मुस्तनद मानी जाती है। जिस तरीके से रावियान हदीस जब सिलसिले रवायत को आगे बढ़ाते हैं तो सलासिल का तस्करा करते हैं, असानीद का तस्करा करते हैं, सनदों का तस्करा, मैंने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां से फलां सुना, फिर उन्होंने सहाबी से सुना, फिर वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान फरमाया। ये सनद वाला सिलसिला बहजतुल असरार शरीफ के अंदर जो वाक़यात हैं गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, वो वाक़यात ऐसे ही लिखे हुए हैं। मेरे उस्ताद फलां से मैंने सुना, उनका बयान है कि मैंने अपने फलां शेख से सुना, उनका बयान है कि वो अपने शेख से सुनते हैं, फिर वो गौसे आज़म तक सिलसिला पहुँचता है। इस तरीके से बहजतुल असरार शरीफ का मामला है। तो मुफर्रज इब्न निबहान का बयान है कि बाद में मैं उन लोगों से मिला, उन 100 उलमा से मैं मिला, उन उलमा की जमात से मैंने मिला, मैंने उनसे कहा कि मामला क्या था, आखिर तुम इस कदर बेकरार और बेताब क्यों हो गए थे? तो उन लोगों ने कहा बात दरअसल ये है कि जैसे ही गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुर्सी पर बैठकर अपने सर मुबारक को झुकाया और उनके सीने से एक नूर निकला जो हमारे सीने के अंदर पेवस्त हो गया और हमारा सारा इल्म सलब हो गया। हमारा सारा इल्म जो हमारे सीने में थे, ये सारा इल्म गायब हो गया, हमारा ज़हन बिल्कुल खाली हो गया, सब कुछ नसियम मनसिया हो गया। मगर उसके बाद जब गौसे पाक ने हमें अपने सीने से लगाया तो गया हुआ इल्म दोबारा हमें मिल जाता है, वो सर्व किया हुआ इल्म दोबारा हमें हासिल हो जाता है। आप जरा अंदाजा लगाए कि वो लोग जो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करामतों का जो करामतों के अंदर जो शक करते थे हज़रात ने हैं, और बताओ उनका क्या हाल होगा। इस तरह के वाक़यात उसके अंदर करामतों का जिक्र हो और फिर उनकी अज़मतों का जिक्र हो, उनकी इस्तिक़ामतों का, हर मामले में सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यगाने दहर नजर आते हैं, अपने ज़माने के अंदर यक्ता और मुमताज़ नजर आते हैं। एक शेख हैं जिनका नाम हज़रत शेख अबुल हसन है, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ मिस्र के रहने वाले थे। ये आए गौसे पाक की बारगाह में तो रास्ते में इन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, कुछ था नहीं, ये थी इनका एक और साथी था, छुरी एक पास में थी इनके पास, तो छुरी बेच करके इन लोगों ने चावल खरीदा और वही चावल खाया, अपना भूख मिटाया। गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, फिर भी भूख इनकी मिटी नहीं थी। जैसे गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर गौसे आज़म ने खादिम को हुक्म दिया, इन्हें खाना खिलाओ, ये भूखे हैं, छुरी बेच कर आ रहे हैं, खाना चावल खाया मगर फिर भी इनका पेट अभी भरा नहीं, इन्हें खाना खिलाओ। चुनांचे कशक और शहद लाया गया उनके लिए, कशक और शहद उनके लिए लाया गया। कशक को हजरत अबुल हसन के सामने रख दिया गया और शहद को दूसरे दोस्त के सामने रख दिया गया। गौसे आज़म ने फरमाया नहीं, अबुल हसन को शहद दो, इनको शहद के खाने की ख्वाहिश है, उनके दोस्त को कशक दो, इनको कशक कोई खाना रहता होगा उस जमाने का, उनको कशक दो, उसे कशक खाने की हाजत है। जब ये हाले दिल पर इस तरह से आगाह जब देखा अबुल हसन ने तो दौड़ करके हुजूर गौसे पाक के कदमों को उन्होंने पकड़ लिया। गौसे पाक के कदम को जैसे ही पकड़ा, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मरहबा या वाइज़ा, या मरहबा बेवाइज़े मिस्र, वाइज़े मिस्र तुम्हारा आना मुबारक हो, खुश आमदेद, अहलन व सहला, मरहबा तुम्हारा आना मुबारक। अर्ज़ करते हुजूर, हज़रत अबुल हसन अर्ज़ करते हुजूर मैं तो इतना बड़ा जाहिल हूँ कि मैं सही से सूरे फातिहा भी नहीं पढ़ सकता और आप वाइज़े मिस्र मुझे कह रहे हैं, खतीबे मिस्र मुझे कह रहे हैं, मिस्र का मुक़र्रिरा मुझे फरमा रहे हैं, भला मैं
तकरीर कैसे कर सकूंगा, मैं बात कैसे बयान कर सकूंगा। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए कुछ भी हो अमरे रब्बी यही है, अल्लाह का हुक्म यही है। चुनांचे एक साल में वो इस कदर एक मदरसे में गए, एक साल में इल्म हासिल किया और एक साल में बहुत अच्छे मुहद्दिस बन गए, बहुत अच्छे खतीब बन गए। उसके बाद रुखसत होने के लिए हजरत गौसे आज़म की बारगाह में जब हाजिर हुए तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए देखो जब तुम मिस्र जाओगे तो दमिश्क के अंदर तुम्हें एक फौज तैयार खड़ी मिलेगी जो मिस्र पर हमला करने वाली होगी। उनसे कह देना कि इस साल उनका हमला कामयाब नहीं होगा, आइंदा साल उनका हमला कामयाब हो सकता है। चुनांचे यह हजरत अबुल हसन शेख अबुल हसन पहुंचे दमिश्क, वहां के जो फौज का सालार था उससे मुलाकात की और इशारा फरमाया कि तुम अगर हमला करो तो कामयाबी तुम्हें नहीं मिल सकती, हाँ आइंदा साल तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। मगर वो नहीं माना, एक दीवानी के बल समझ करके वो अपनी तैयारी में मसरूफ रहा और उधर वो बता करके उसे इत्तला दे करके मिस्र पहुंच गए। मिस्र के बादशाह के पास गए और बादशाह से ये फरमाया कि तुम मुतमईन रहो, बादशाह भी तैयारी कर रहा था जंग की, बादशाह का मुतमईन रहो वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। बादशाह इतना खुश हुआ कि 1.25 लाख दीनार उन्हें इनाम में दे दिया। उसके बाद वाकई में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने जब हमला किया तो बादशाह की फौज देख कर ही इसके फौजियों के अवसान खफा हो जाते हैं और सबके सब सर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। उसके बाद दूसरे साल उन लोगों ने हमला किया, दूसरे साल फिर दोबारा हमला किया तो अब दूसरी बार फिर उन्हें कामयाबी मिल जाती है। सालार जो था, जो इस फौज का उस फौज का जो सालार था उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा शेख अबुल हसन को बुलाओ, कहाँ है, उन्हें तलाश किया गया, सालार के पास लाया गया तो सालार ने 2.5 लाख दीनार इनाम में दिया। तुमने सही कहा था कि इस साल हमला कामयाब, उस साल हमला कामयाब नहीं हुआ, मैंने किया और कामयाब नहीं हुआ, इस साल हमने हमला किया तो हमें कामयाबी मिल गई। आप अंदाजा लगाएं 2.5 लाख दीनार इस तरह से हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत से उन्हें हासिल हुए और वो उनका शुमार मालदारों में होने लगा। मैं ये अर्ज करना, हमारी आंखें जो नहीं देखती हैं अहलुल्लाह की आंखें वो उनका मुशाहदा कर लिया करती हैं। उन्हें ऐसे नहीं फरमाया कुरान मुक़द्दस ने वो कूनू मा सादिक़ीन हैं, उनके साथ वो निगाहें वो उनका हाल तो ये है, गौसे पाक का हाल तो ये है, उनका मकाम तो बुलंद वाला है ही है। उनके मुरीद, उनके खुलफा अगर निगाह उठा दे तो तकदीर बदल जाए, निगाह अगर उठा दें तो तातारी कौम की तकदीर बदलने वाले जानते, कोई कादरी शेख ही थे, हलाकू चंगेज खान के पोते की तकदीर बदलने वाले गौसे आज़म के खुलफा में से थे, उनके खलीफा के खलीफा थे, गौसे आज़म के खुलफा मुरीद में से थे। तगोदार खान के दरबार में जिन्होंने जाकर के कहा था कि मैं यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ, फिर उसने इजाज़त दी। आहिस्ता आहिस्ता तगोदार खान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, पूरी कौम के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हुई और पूरी कौम दामन इस्लाम के अंदर आ जाए। वो लोग जिनसे पूरा इस्लामी इलाका कांपता था, जिसने तहलका मचा करके रख दिया था, उन जालिमों का जुल्म अगर आप पढ़ेंगे ना तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। बच्चे, बूढ़े, इमाम और औरतों तक को नहीं छोड़ते थे वो जालिम। बुखारा के अंदर इंसानों के सरों का मीनार बना डाला हलाकू ने, चंगेज खान का पोता था ना ये हलाकू, इसने मीनारा बना डाला। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हर सिपाही की जिम्मेदारी कम से कम एक मुसलमान का सर तो जरूर काट कर लाए ताकि मीनारे में लगाया जाए। तो हाल ये था कि बुखारा, समरकंद वगैरह के इलाके में ढूंढने से कोई मुसलमान नहीं मिलता था। 50-50 दिरहम दे करके, लालच दे करके पैसे मुसलमानों को तलाश किया जाता था और फिर उन्हें कत्ल करके उसका सर उस मीनारे के अंदर लगा दिया जाता था। इस कदर जुल्म सितम का बाजार उन लोगों ने गर्म कर रखा था। मगर अभी एक सदी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, इस जुल्म के एक सदी भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि गौसे आजम के दर का परवंदक गया और पूरी तातारी कौम की तकदीर बदल डाली। हाय आया कितने तातार के अफसाने से पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। और फिर उसी तातारी कौम ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान के अंदर भी जो कुछ भी हुआ सब वही लोग थे जिन्होंने एक बिसात बिछाई
اور پوری دنیا کے اندر ایک نام روشن کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے مریدوں میں شامل فرمائے، اور کل قیامت کے میدان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں ہمارا حشر فرمائے، اور ان کے مریدوں کے توسل سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو مولا حقدار بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا